Good evening, everyone. My name is Jasmine Sawant, and I'm the artistic co-director of Savitri Theatre Group. A very good morning to those of you who are watching from India, and a very, very happy Diwali. We are delighted to present Hindi Shorts 2020. We are bringing this to you from Sampradaya Theatre, which is located in the city of Mississauga, region of Peel, province of Ontario, which is in Canada. We will begin now by acknowledging the land on which we gather and which the region of Peel operates is part of the treaty lands and territory of the Mississaugas of the Credit. For thousands of years, Indigenous peoples inhabited and cared for this land. In particular, we acknowledge the territory of the Anishinaabeg, Huron-Wendat, Haudenosaunee, and Ojibwe Chippewa peoples. The land that is home to the Métis, and most recently, the territory of the Mississaugas of the Credit First Nation, who are direct descendants of the Mississaugas of the Credit. We are grateful to have the opportunity to work on this land, and by doing so, we give our respect to its first inhabitants. We now bring you a message from the Consul General of India at Toronto, Srimati Apurvaji Srivastava, an inspirational message in these difficult times of COVID. Namaskar, I'm extremely delighted that Savitri Theatre Group has taken its Hindi short plays digital this year. This year has been unprecedented due to COVID-19 pandemic, but it is initiatives like this which keep us connected to our roots and identity. India is truly incredible. The sheer diversity of languages, cultures, traditions and customs makes us unique. And it gives me great pleasure that Savitri Theatre Group is continuing with their tradition of showcasing Hindi short plays. I would like to congratulate the writers, directors, producers, the cast and the entire support team for their resilience and for continuing this despite the pandemic. All the very best, and I look forward to watching all the plays. Thank you. Happy Diwali. Namaskar. Namaste, good evening, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदी शॉर्ट्स 2020 सीजन 3 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं श्रुति शाह, आर्टिस्टिक को डायरेक्टर ऑफ द सावित्री थिएटर ग्रुप। आप सबको हमारे सावित्री परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। प्लीज हैव अ वेरी वेरी सेफ दिवाली एंड हैप्पी वन। सो इस साल तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि हम हिंदी शॉर्ट्स 2020 में कर पाएंगे या नहीं, पर ये श्रेय मैं अपने सावित्री परिवार को देती हूँ कि उनके जोश और कोऑपरेशन की वजह से हम ये सीजन पेश कर रहे हैं। सो इस साल हम लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमारी हिंदी शॉर्ट्स की सीजन पेश करेंगे। सो 5 लघु नाटिकाएं, जिसमें से एक हमने लास्ट फ्राइडे किया था, तो ये दूसरा है। आज हम कर रहे हैं उस दोपहर की बात, रिटन बाय उदय कृष्णा एंड डायरेक्टेड बाय गुंजा चक्रवर्ती। जस्ट अ नोट कि हम हमारे रिहर्सल्स और हमारी जो परफॉर्मेंस है, सब कोविड के जो भी रेगुलेशंस हैं पील डिस्ट्रिक्ट में उसके अनुसार ही कर रहे हैं। सो वी आर ऑल कीपिंग सेफ। इंट्रोड्यूसिंग यू टू गुंजा चक्रवर्ती, जो आपको प्ले के बारे में कुछ बताएंगे और अपने कास्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं गुंजा आप सभी दर्शकों का स्वागत सावित्री थिएटर ग्रुप के हिंदी शॉर्ट्स 2020 में करती हूँ। उस दोपहर की बात, ये इट्स रिटन बाय उदय कृष्णा एंड ये कहानी है एक माँ और बेटे के अनोखे रिश्तों की। इसमें बेटे ने अपने लिए कुछ सपने देखे हैं और उसकी माँ ने भी उसके लिए कुछ सपने देखे हैं। ये कहानी है उन दोनों के सपनों और विचारों की। इस नाटक के अदाकार हैं अमलान, अंजुम, राज, मीका, जेनिफर एंड जोएन। आइए देखते हैं। और निरंजन, लाइंस याद है ना? देख, अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
अच्छे से करना। ये मूवी ना बिल्कुल माँ और बेटे के इमोशंस पे है। और ये सीन तो मतलब इज लाइक द क्रक्स ऑफ द मूवी। इसके बाद अपना हीरो बदल जाता है। वो अपना रिवेंज लेता है। मतलब अपने अंदर के सारे इमोशंस को इसमें चैनलाइज कर लो। मतलब मदर इंडिया, दीवार में शशि कपूर, बेटे का अनिल कपूर, शाहरुख खान बाजीगर वाला, सब मिलके आना चाहिए। समझ रहा है ना? और ये कैरेक्टर यानी कि तू, जो अपनी मां से इतना प्यार करता है कि उसके लिए जान भी दे सकता है, उसके साथ ये हुआ। अच्छा चल, तुम एक्टर हो यार, तुम्हें सब पता है। हम क्या है, कास्टिंग एजेंट। हमारा काम है ड्राइवर टाइप, सब रास्ता दिखाना, ठीक है ना? और ये कैरेक्टर ये स्लम से, तो पिच थोड़ा लाउड रखना। मतलब रॉबर्ट डे निरो, मार्लिन ब्रांडो, सटल एक्टिंग अच्छी है लेकिन यहां नहीं। समझ रहा है ना? ठीक है, स्टे इन योर जोन, स्टे फोकस्ड। वो लोग आ रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक। बेटा, कपड़े तो बदल लो। नहीं माँ ठीक है, मैं जल्दी जाने वाला हूँ। अरे क्यों? अभी तो आया था। ऐसे बस एक ही दिन के लिए तो आया था, डे ट्रिप। कल फिर ऑफिस जाना है। अच्छा, बात पूछूं? तुम्हारा कभी अफेयर था क्या? तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? You know, first job is very important. You tell me like, शेयर करो, बात करो, don't be angry, let's be friends, etc. अपने दोस्त से तो मैं यही पूछता। सोचती हूँ, गिन गिन के बताती हूँ तुम्हें अपने अफेयर्स, लेकिन शाम तक, ओके? हाँ हाँ, वेरी फनी। किसी सड़ी हुई टीवी सीरियल में था क्या है जो? हमेशा तो झगड़ते रहते हो यार आप दोनों। It's not like you love him. अरे हम अपना देख लेंगे, तू अपना देख। वो जो गर्ल का बेटा है ना, वो यूरोप जा रहा है, उसकी कंपनी भेज रही है उसे। हाय, तू कब जाएगा? यार I told you I'm not interested in this job thing. कितनी बार बोलूं आपसे? मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ। वेरी गुड, फिर पानी पूरी का ठेला लगाओगे? See, okay, I have this plan, alright? I'll quit my job in Bangalore, go to Mumbai and give acting a try. एक्टिंग? शक्ल देखी आईने में बेटे? तुम्हें पता है, शाहरुख खान की माँ ना उसे हमेशा पैम्पर करती थी। उसे बोलती थी कि वो दिलीप कुमार जैसा दिखता है, कि वो बहुत हैंडसम है, इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट निकला और अचीव कर गया। इट्स कॉल्ड पिग्मेलियन इफेक्ट। समझे कुछ? और एक तुम हो, तुम जैसी माँ मिली है ना, इसलिए घर में इतने सारे फेलियर्स हैं। और तुम सबसे बड़ी फेलियर। तुझे क्या लगता है कि तू ही है जो ये सब करना चाहता है? कॉलेज में ड्रॉप आउट करना चाहता था एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो मार्क जुकरबर्ग की तरह। अब जाके सिनेमा करेगा, ये शाहरुख की तरह। अरे बेटे, तुझमें तो टैलेंट भी नहीं है। मैं तुम्हारी उम्र की थी तो भरतनाट्यम सीख के स्टेज शोज करती थी। कॉलेज में कोई भी ऐसा डांस शो नहीं होता था जिसमें मैं नहीं होती थी।
कॉलेज की हीरोइन बोलते थे मुझे। और तू, तेरा तो पैर हिलता है स्टेज के नाम से, और ये छिछोरेपन को अभिनय बोलते हैं आजकल के लौंडे। क्या बोला? रिच होगी तेरी माँ। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। माँ को ही तो बोला रिस्पेक्ट इज इंटरनल, ओके? ये गर्दन पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, रैश। टेक केयर बेटा। और ये बाल इतने लंबे क्यों करे हुए हैं? कटा ले। देख ऑफिस जाते हैं लोग कितना प्रेम और प्रॉपर होके जाते हैं। अपने डैड को ही देख लो तो। प्लीज यार, प्लीज, कैन यू प्लीज शट अप? देख बेटा, देख गुस्सा, देख सीरियस हो जा अपने करियर में। ये स्कूल कॉलेज नहीं है। देख कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं आजकल। यू हैव सच अ नाइस जॉब। ये एक्टिंग ड्रीम्स, अरे ये सबको लगता है। यू नो मुझे भी लगता था, काश मैं सुपरस्टार होती। हेमा मालिनी से तो अच्छा डांस कर लेती हूँ मैं। क्या यकीन नहीं आता तुझे? बस आज के लिए इतना बंडल काफी। अगली बार आऊंगा ना तो और सब तू रुक, दिखाती हूँ, रुक। तड़ंग तक दिक्कु तक तरी गिण तोमता तई तईयुम तक ताम किट तक ता तई तईयुम तक ताम किट तक ताम। ठीक है, उसमें क्या है? बहुत लोग ऐसा नाच लेते होंगे। अब हर कॉलेज में एक ना एक हीरोइन तो होती ही है। देश में लगभग 1000 कॉलेजेस होंगे, तो हर साल 1000 लड़कियां खुद को कॉलेज की हीरोइन मान के ग्रेजुएट होती होंगी। 10 साल में 10,000। ये बोलो तुम में हिम्मत नहीं थी अपना पैशन परस्यू करने की, इसलिए तुमने नहीं किया। मुझ में तो हिम्मत है तो मैं करूंगा। तेरे बाप ने शादी के बाद डांस करने को मना किया था। हिम्मत, अगर मुझे तुझ जैसा मौका मिलता ना, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती मैं। यार आपने तो शादी के बाद भी पढ़ाई की। इनफैक्ट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में भी एक्टिव थे आप, तो डांस में क्या प्रॉब्लम थी पापा को? पता नहीं उस शक्की इंसान के मन में क्या था। शायद दूसरे मर्दों का अप्रिसिएशन हैंडल नहीं कर पाया। एकदम प्यार से कह के फुसला दिया मुझे, और मैं भी मान गई। अब कहते हैं जो जी में आए करो। सारी जवानी छिन जाने के बाद। क्या हंसता है? बस थोड़ी ढील के आदि पूरा लेक्चर ही शुरू। थोड़ा चुप बैठ बुढ़िया। मैं बुढ़िया, तू अंकल। अरे प्लीज चुप यार। तुम बोर नहीं होती यार यहाँ पे अकेले? पता है मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, मुझे लगता है कितना साइलेंस है यहाँ पे। पता है मैं वहां नौकरी में लोगों के बीच दोस्तों के साथ हमेशा आवाज रहती है यहाँ पर। यहाँ सब कुछ इतना साइलेंट, सो बोरिंग। ये भी उधर ही पड़ा तब से। क्या? अब हमारी जिंदगी का क्या बताऊं तुझे? ऐसे ही है। इसीलिए तो कहती हूँ कॉल कर, मिलने आ। अरे छुट्टी लेके वो फिल्म इंडस्ट्री वालों के पीछे पड़ने से बेटर है तो यहाँ अपनी माँ के पास आ। मैं तरस जाती हूँ तुझे देख। नाटक अच्छा कर लेती हो तुम, एकदम इमोशनल मैनिपुलेशन। आखिर जो चाहती हो करवाई तो लेती हो मुझसे, क्या फायदा नाटक करके फिर? थोड़ा और मेकअप लगा लो, रामलीला में सुर्पनखा का रोल तो मिल ही जाएगा तुम्हें। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। अरे
शाम तक तो रुक, गुड़िया स्कूल से भी आ जाएगी तब तक। अरे छोटी बहन को बिना मिले जाएगा? मैंने सोचा था कुछ दिन रुकेगा तो। ये तो तुम मेहमानों के जैसे चाय पी के जा रहे हो। यार मैं इधर अपने ड्रीम्स फुलफिल करूंगी, तुम्हारे साथ बैठ के टाइम पास। जिंदगी तो मेरी बर्बाद कर दी ना तुमने, ये करो वो करो बोल के। बर्बाद कर दी? क्या बर्बाद किया है? अरे इतना कुछ तो दिया है तुझे। सारी जिंदगी तुम लोगों के हिसाब से जिया, ये डिग्री वो डिग्री, मार्क्स नौकरी। कभी मेरी मर्जी का कुछ नहीं करने दिया तुम लोगों ने। कभी मुझसे पूछा मुझसे कि मैं क्या करना चाहता हूं? हमेशा बस ये इसको देखो उसको देखो, ये करो वो करो। दम घुटता है मेरा यहाँ पे, ना निकल सकता हूं ना ही थूक सकता हूं, ना मैं अपनी नौकरी में अच्छा हूं। तू अपनी नौकरी में अच्छा नहीं है तो मेहनत कर। अपनी नाकामी का जिम्मा हमारे ऊपर मत डाल। शट अप, जस्ट शट अप। क्या नाकामी यार? आई एम ट्राइंग टू शेयर समथिंग और आपको हमेशा उस नौकरी में लाइन के ऊपर ही रिस्पॉन्ड करना है। बाकी जो बोला उसका क्या? यू आर सच अ पैथेटिक लिसनर। यू नो यू आर द वर्स्ट मदर इन द वर्ल्ड। बेटा बेटा रुक। तुम जैसी माँ से तो अच्छा यही है कि मैं अनाथ पैदा होता। निरंजन, बेटा निरंजन। मैं निरंजन, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। मैं 35 साल का हूँ, कद 5 फुट 9 इंच। मैं तकरीबन 10 साल से थिएटर कर रहा हूँ बैरी कोहन और उस्मानुद्दीन शाह के ट्रूप में। लगभग 12 एडवर्टाइजमेंट्स किए हैं और 7 फिल्में, जिसमें 3 में आई हैव बीन द मेन एक्टर, मेन सपोर्टिंग एक्टर इनफैक्ट। आज मैं स्लम बाला के रोल के लिए ऑडिशन देने वाला हूँ। सीन है माँ का डेथ सीन। माँ, माँ, उठ माँ, ये देख तेरा बेटा है माँ, आंखें खोल माँ, कुछ बोलना माँ, बोलना माँ। ये जिसने भी तुम्हारे साथ किया है ना माँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। माँ, तू हमेशा कहती थी ना मैं घर जल्दी आऊंगा तो मुझे अपने हाथों से खिलाना खाओगी, कहती थी ना। देख माँ, आज मैं जल्दी आ गया, तेरा बेटा जल्दी आ गया माँ। देखना माँ, उठना माँ, उठना माँ। मेरे और उसके बीच में जो भी था उसे घर वालों को बीच में नहीं लेके आना चाहिए था। अब वो देखेगा, अब वो मेरा इंतकाम देखेगा। तैयार हो जा कुत्ते, मैं आ रहा हूं।
नाइस, बहुत अच्छा था। वो जो बीच में टोन चेंज किया था वो तो बहुत ही अच्छा था। I'm sorry. I thought it was a bit too much. I feel that थोड़ा natural होता तो better होता. Acting is a feeling, and the lines have all the emotion. There's no need to yell it. नेचुरल इज सब्जेक्टिव, मूविंग टारगेट है, कैरेक्टर इंडियन है। वी इंडियंस आर वर्बोस एंड एक्सप्रेसिव। ऐसे हॉलीवुड के लेंस से नहीं देख सकते। Sure, to each his own. Actually, I need to say, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। She is very critical. मैं बस ये ऑडिशन देने के लिए आया था। तो आपका जो भी डिसीजन या फीडबैक हो, प्लीज मेरे एजेंट को दे दीजिएगा। थैंक यू। हाँ निरंजन, I'm Dr. Venu here. Is it a good time to talk? या Look, I know it's difficult to digest, पर जो मैंने तुम्हें in person बताया था वो सब सच है। आई नो, मैंने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया है। कोई पास में नहीं है तो अभी नहीं आ पाएंगे। मैं तुम्हें बस कॉल करके ये बोलना चाहती थी कि कुछ भी ज़रूरत पड़े या बात करनी हो तो बेझिझक मुझे कॉल करना। श्योर, थैंक यू। भैया। कौन? माँ मैं निरंजन, बस थोड़ी देर बाहर गया था। भैया, हाँ यू नो व्हाट, मॉम की कुछ तस्वीरें मिली, दिखाओ। डांस पोजेस वाली। दिखाओ। ब्यूटीफुल ना? अरे वाह, मॉम के सारे सामान के ऊपर कब्जा कर। बड़ी शरारती होगी है। कम ऑन यार, आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड। और वैसे भी मैं घर पे अकेले बोर हो जाती हूँ। यू नो मुझे ये डायरी भी मिली एंड आई रेड सम ऑफ इट। दिखाओ। अरे एक मिनट आया माँ। भैया। हाँ। माँ And this COVID. ठीक हो माँ? हाँ माँ। और पीछे। अरे खाना छोड़ो यार, क्या करना जान के आपको खा लिया मैंने। अपनी सेहत का ख्याल रखो प्लीज। क्या हुआ माँ? जरा दर्द हो रहा है क्या? हाँ? रो मत माँ, उसे कुछ होने वाला है क्या? हाँ? माँ
क्या हुआ माँ? डॉक्टर ने क्या अरे डॉक्टर ने जो बोला सो बोला, क्या करना है यार आपको जान के? क्या बोला? जिद गई नहीं अभी तक इनकी। माँ चली जा पापा के पास में, क्या फायदा यहाँ रह के? मुक्ति ले लो माँ, मुक्ति ले लो। मैं फ्रेश टॉवल्स लेके आया। Mom? माँ? Mom? माँ? 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 बेटा, आज तो ऐसे ही चला गया। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद पहली बार घर आया था। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि तू एक मैच्योर और काबिल आदमी बन गया होगा, और तू बस मुझ पे चिल्ला के अपनी बहन से भी ना मिल के चला गया। आज मुझे तेरी बातों से, हरकतों से बड़ी तकलीफ पहुंची है। तू बचपन से ही ज़िद्दी था और झगड़ता था, पर जब बड़े होने के बाद भी ना बच्चे ऐसी हरकत करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मेरी ना तुम्हारी तरह कोई ड्रीम्स नहीं होते तो शायद मैं तुझको समझ नहीं पाती। तू पैदा हुआ ना, उसके बाद से ही तू मेरा ड्रीम बन गया। उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती थी या मेरी ज़िंदगी क्या थी, ये मैं पूरी तरह से भूल गई। मेरा ड्रीम उसके बाद से बस यही था कि तू एक अच्छी लाइफ जिए, एक नॉर्मल हेल्दी फैमिली हो, अपनी सक्सेसफुल हो अपने काम में, अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स की तरफ जिम्मेदारियों में, स्टेबल जॉब, ताकि ज़िंदगी भर अच्छा छोड़, लेक्चर लगेगा तुझे। ये तुम लोगों के सपनों में कोई फैमिली, पेरेंट्स, ये सब दिखाई नहीं देता क्या? Is being responsible, self-sufficient and sensible man not an achievement enough? खैर, मैं तुम्हारे ऊपर अपने विचार नहीं थोप रही, पर सच में वो ही मेरे ड्रीम्स थे। शायद कुछ और सोचना चाहिए था, अपनी एक लाइफ बनानी चाहिए थी। पता नहीं, अब उम्र हो गई है। पर तू ना बेटा, अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल करना, मेरी तरह मत बनना। लगता है जैसे पूरी जिंदगी बेकार में चली गई।
निरंजन यार, नौकरी छोड़ के एक्टिंग करने चला था, वही निरंजन। कैन आई प्लीज कम बैक टू वर्क यार, प्लीज। Thank you everyone for watching and I hope कि आप लोगों ने play enjoy किया है. Want to thank our amazing tech team, Nitin Sawant, Siddhant Sawant, Ash Verma, Deepak Chakravarti, Shane Larcher, and I would also take the opportunity to say thank you to Lata ji, with whose support we are always together, and she's always supporting us through all our projects. So thank you so very much. और अब मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है अम्मा, और ये भी श्री उदय कृष्णा जी ने लिखा है. So don't forget to tune in next Friday 9 PM.